नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृतमयी शरद पूर्णिमा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अमृतमयी शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चंद्रदेव से प्रार्थना की है कि ये पर्व आपके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता के अमृत से अभिसिंचित करे। एडीजी जोन मेरठ के ठाकुर के जनपद शामली पुलिस लाइन में परेड की सलामी के उपरांत परेड का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद में पुलिस लाइन का भ्रमण कर कई शाखाओं का निरीक्षण कर सर्व संबंधी को भी जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को यहां पर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और पूरा मामला शामली से है, जहां पर एडीजी जोन मेरठ ने यहां पर मौके पर निरीक्षण किया है, जिस दौरान तमाम तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। पुलिस लाइन का यहां पर निरीक्षण किया गया है और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एडीजी जोन मेरठ ने मौके पर निरीक्षण किया और जिसके बाद में तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर विशेष ब्रीफिंग की गई है, तो सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली। Rajesh, a very good evening to all of you. Namaskar and Salam Alaikum to all our friends from the media. As you all know, the Honorable President of India is on a 3-day state visit to Algeria, and she would be departing for Mauritania tomorrow morning. So I thought that I will meet you and brief you on the visit as we just come towards the end of it. As you all know, the Honorable President is on a 3-nation state visit to Algeria, Mauritania, and Malawi. She arrived in Algiers on the evening of 13th October from New Delhi on the first leg of her visit. As a special gesture, President Abdelmadjid Tebboune of Algeria received her at the airport and accorded her a ceremonial welcome. The importance accorded by the Algerian side to this visit can be ascertained from the fact that several Algerian ministers were also at the airport to welcome the Honorable President of India. This is the first ever visit by an Indian president to Algeria, and a visit at the level of the head of state and head of government from India to Algeria after nearly 4 decades. This is the first incoming visit of a head of state or head of government after President Tebboune assumed office in his second term. President of India is accompanied by Minister of State, Sri Sukanta Majumdar, and honorable members of Parliament, Sri Mukesh Kumar Dalal and Sri Atul Garg on this state visit, besides an official delegation. Friends, to give you a bit of the context to this visit, India and Algeria share very warm and cordial relations. We supported each other's freedom movement and fight against colonialism. Both countries were part of and continue to be a part of the non-aligned movement and have been supportive of each other at bilateral and multilateral fora. Algeria is not only the largest country in Africa, but it is also one of the largest economies in Africa and in the Arab world. It continues to grow economically. It is uniquely placed at the gateway of Africa and also Europe. Between India and Algeria,
there have been regular political level interactions. Recently, our External Affairs Minister met the Foreign Minister of Algeria at New York. We have significant economic and commercial cooperation. Our bilateral trade touched around 3 billion in the year 2019 before the COVID pandemic struck. However, it's satisfactory that the trade has once again picked up and is touched around $1.7 billion last year. The visit of the Honorable President to Algeria is expected to provide the necessary momentum to this relationship. Now let me inform you about the engagements that the Honorable President had during this visit. On the day of her arrival, that is on 13th October, the Honorable President addressed the members of the Indian community at Algiers in the evening at a reception which was hosted by our ambassador in Algeria. Speaking at the event, she commended the Indian community's positive contribution to further promote people-to-people relations between the two countries. She said that the Indian community, working in diverse projects in remote areas, are in a true sense the ambassadors of India. She appreciated Indian community's contribution in enhancing India's position, prestige and standing abroad, and for acting as a bridge, mediator, facilitator and advocacy group for taking forward India's interests in Algeria. The Honorable President wished the Indian community success and prosperity and expressed confidence that they would continue to work for the betterment of India-Algeria relations. Now coming to the second day of her visit, which was on 14th of October, she started first at Maqam Echayed, where the Honorable President placed a wreath at the memorial in honor of the martyrs of Algeria's liberation movement. She was given a guided tour of the National Mujahid Museum, displaying the sacrifices of Algerian nationals during their freedom struggle. Thereafter, the Honorable President traveled to the El Mouradia Palace for a bilateral meeting with His Excellency Mr. Abdelmajid Tebboune, the President of Algeria. She was given a ceremonial guard of honor at the palace. Both the leaders then had a bilateral meeting which was very cordial and positive. They discussed issues of bilateral cooperation, regional and international issues of mutual interest. There was greater appreciation of each other's positions and convergence of views. After this bilateral tete-a-tete between both the presidents, there was a delegation-level talks. The two leaders discussed ways to strengthen and deepen India-Algeria bilateral relations across the political, economic and commercial as well as the people-to-people relations. Both sides expressed their keenness to engage in all areas of mutual cooperation and to take the partnership to a new level. The Honorable President has invited the President of Algeria, His Excellency Mr. Abdelmajid Tebboune, to pay a visit to India, which has been graciously accepted. Thereafter, both the Presidents addressed the media on the outcome of their meeting. This was followed by a banquet hosted by President Tebboune at the People's Palace of Algeria in the honor of President of India. In the afternoon, the Honorable President addressed India-Algeria Economic Forum, which was co-hosted by the Algerian Economic Renewal Council and our Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI. The Minister of Trade and Export Promotion of People's Democratic Republic of Algeria, His Excellency Mr. Tayeb Jitoni, and several other ministers, several business persons, champions of industry from Algeria, in addition to the business delegation from India, participated at this event.
Speaking at this event, the Honorable President called for reinforcing the ongoing cooperation in energy, construction. तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली। और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। फ्रॉम हेड टू टो, Siddharamaiya, the Chief Minister of Karnataka, is embroiled in the Muda scam. There is no doubt about it. आप सभी जानते हैं कि कल ईडी ने भी एक चार्जशीट फाइल किया है। केवल मुदा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है ऐसा नहीं हुआ है, ईडी के चार्जशीट का भी इफेक्ट रहा है। ईडी के चार्जशीट में ये दावा किया गया है और सुनकर ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार भी राजनीति होती है कि ये जो कर्नाटक में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हमारे अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एससी एसटी वेलफेयर के लिए जो फंड है कर्नाटक में, दैट लाइज अंडर द एजिस ऑफ महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, उसके फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। इनफैक्ट द ईडी's charge sheet categorically mentions that the money which was meant for the welfare of SC and the ST community, which was in the custody of the Maharshi Valmiki board, which was in fact the money of the taxpayers, that was used for a political purpose by the Congress party. कांग्रेस से 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए 200 रुपए, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, इस प्रकार से वहां बांटा है। दे ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन ऑफ बेल्लारी लोकसभा सीट। और आप सभी जानते हैं कि जहां तक ये मुदा स्कैम का विषय है, इसमें जो लेखा अधीक्षक, द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे, पी चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड, उन्होंने आत्महत्या की थी। और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण, इलीगल शिफ्टिंग हुई है। एंड देयर इज अ रूल अक्रॉस द कंट्री that the money which is specifically allotted for the welfare of the SC/ST community cannot be diverted. आप बाकी फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर जो SC/ST कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा है, उस पैसे को कदाचित आप किसी और काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। It is too much of a coincidence, I will say, that Rahul Gandhi goes to America and he declares that हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण समाप्त कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली वी सी दैट इन कर्नाटक द मनी विच इज मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC/ST कम्युनिटी इज डाइवर्टेड एंड इज यूज्ड फॉर पर्पसेस टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल नीड्स ऑफ कांग्रेस पार्टीज लीडर्स। मुझे तो बोलते हुए भी आश्चर्य लग रहा है और आप सब हैरान परेशान होंगे कि जिस प्रकार की ये नोट सामने आई है, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के जो पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं ने न केवल चुनाव में किया, मगर एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीदी गई है। वन लैम्बोर्गिनी बोलने से केवल अखिलेश यादव याद आते हैं ऐसा नहीं है। लैम्बोर्गिनी, इन सबके आपस में कनेक्शन है। ये इंडिया अलायंस वाले, आई डोंट नो व्हाट दे हैव विद लैम्बोर्गिनी, वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रांड्स। जस्ट इमेजिन
SC ST वेलफेयर फंड से लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदना, लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई, फ्लैट बुक किए गए, फ्लैट्स हैव बीन बुक्ड, हवाई टिकट बुक किए गए निजी। ये कोई SC ST वेलफेयर के लिए हवाई टिकट बुक नहीं किया गया है, निजी लोगों के लिए हवाई टिकट बुक किए गए। निजी कर्मचारियों को, मैंने किसी को PS रखा, किसी को PA रखा, निजी कर्मचारियों को सैलरी दी गई है और बिजली के बिल का भुगतान किया गया है, वह भी महर्षि वाल्मीकि निगम फंड जो है उसमें से किया गया है। गाड़ियों पर खर्च किया गया, कोई नेता घूमने आया, राहुल गांधी घूमने आए, राहुल गांधी और उनके परिवार के घूमने के लिए उसमें से पैसा खर्च किया गया। आप सोचिए अगर इस प्रकार से पैसा निगम के फंड से, SC ST के वेलफेयर के फंड से खर्च किया गया हो, तो इस प्रकार के CM को अपनी कुर्सी पर बने रहने का क्या अधिकार है, ये आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। और आप सभी ने देखा था कि जब पहले भारतीय जनता पार्टी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता, व्हेन वी आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इनिशियली मिस्टर सिद्धरमैया एंड मिस्टर DK शिवकुमार, दे डिनाइड कि नो, वी आर पाक साफ, हम पाक साफ है, हमने इस प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया। मगर बाद में लेटर, इनफैक्ट दे कंसीडर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा में उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि हां फंड डाइवर्ट हुआ है। तो आप सोच के देखिए, मुदा के चेयरमैन का आज इस्तीफा, ED की चार्जशीट जिसमें एक लोकसभा में बेल्लारी में 7 लाख लोगों पर पैसा खर्च करना, सिद्धरमैया जी का यह पेशकश कि मैं जो जमीन लिया हूं, मेरी पत्नी के नाम पे जो मुआवजे पे जमीन आवंटित हुई है, वो जमीन मैं वापस करने के लिए तैयार हूं। और तो और सदन के पटल पर खड़े होकर यह कहना कि हां द मनी वॉज डाइवर्टेड, डज नॉट दिस रीक ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ द गिल्ट? अगर ये एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट नहीं है तो और एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट कैसे होता है? आपने मर्डर किया है, नहीं, आप ले लीजिए, चाकू ले लीजिए जी, आप चाकू ले लीजिए, इस पे खून लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। सो ही हैज सबमिटेड द मर्डर वेपन, ही हैज सबमिटेड the weapon of corruption, where the land parcel is to be surrendered. The chairman is resigning. What else do we need as an evidence for Mr. Siddaramaiah to step down? I call upon Mr. Siddaramaiah. Mr. Siddaramaiah, if you have the slightest morality left in you, you should immediately step down. You should not wait for today's sunset. आज सूर्यास्त के लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले करप्शन का अस्त होना चाहिए। द कर्टन शुड बी ड्रॉन ऑन द प्रेजेंट रेजीम ऑफ कर्नाटका इवन बिफोर टुडे सनसेट। बंधुगण, ये जो पूरा मुदा स्कैम और जो महर्षि वाल्मीकि स्कैम चल रहा है, उसमें B नागेंद्र, जो उनके खुद के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री उस विभाग के रह चुके हैं, महर्षि वाल्मीकि फंड डाइवर्ट जो हुआ है उस विभाग के जो मंत्री रह चुके हैं, आज वो जुडिशियल कस्टडी में है, ही इज बिहाइंड बार्स, वो जेल के सलाखों पीछे। 16 kg सोना, कोई ग्राम में नहीं बोल रहा हूं, kg, किलोग्राम, 16 kg सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 16 kg सोना सोचना थोड़ा सा भयावह लगता है। 16 kg सोना बरामद हुआ है और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ है, और उसके बाद भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री जी आप सिंहासन छोड़िए। अरे छल में आप सभी को पता है कि मुदा के जो चेयरमैन थे, जिनका नाम मारी गौड़ा जी था, उन्होंने आज रिजाइन किया है, और इसके पीछे सिद्धरमैया जी जब डेप्यूटी CM थे, उस समय एक जमीन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती जी के भाई उनको आवंटित हुई थी मैसूरू के पास एक गांव में। उसके पश्चात जब कर्नाटक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने यह तय किया कि हम वहां कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेके आएंगे और उस लैंड को एक्वायर करेंगे, उसका अधिग्रहण करेंगे, लैंड एक्विजिशन जिसे बोला जाता है, देन वी विल एक्वायर दिस लैंड। तो एक नियम लाया गया कि उस लैंड के एक्विजिशन के बदले हम शहर में
आपको जमीन देंगे, उसके इक्विवेलेंट जमीन देंगे। मगर जो जमीन शहर में दी गई वो कई गुने अधिक थी कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। तो ये सब खैर ये तो समझाने वाले सिखाने वाले इनके तो गुरुजी है ही। नेशनल हेराल्ड स्कैम करके 5,000 करोड़ रुपए गबन करने वाले ये सोनिया जी ने ही ट्यूशन दिया होगा। सोनिया जी ने ही ट्यूशन दिया होगा और उसका रिवीजन वाड्रा जी ने ही कराया होगा और राहुल गांधी जी ने एग्जीक्यूट कराया होगा। नहीं तो नहीं हो सकता है। ये सारी बुद्धि, खलू बुद्धि गांधी परिवार में ही मौजूद है। देश की जमीन को कैसे हड़पना है, कौन से हस्ताक्षर कहां करना है, किस प्रकार से लखनऊ में, भोपाल में, दिल्ली में प्राइम प्रॉपर्टी को हड़प के अपने जेब में डालना। 5,000 करोड़ सोचिए जरा, 5,000 करोड़ ये प्रॉपर्टी। अक्यूज नंबर 1 अक्यूज नंबर 2 है दोनों माँ बेटे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर है जिसमें अक्यूज नंबर 1, क्योंकि बार बार नहीं बोला जाता है सोनिया जी और राहुल जी, तो अक्यूज नंबर 1 हाजिर हो ऐसे बोला जाता है। अक्यूज नंबर 2, तो अक्यूज नंबर 1 सोनिया जी हैं और अक्यूज नंबर 2 राहुल जी हैं। 5,000 करोड़ गबन किया हुआ, दोनों बेल पे हैं, दोनों बेल पे हैं इनके गुरुजी। और अभी तक सिद्धरमैया जेल से बाहर है, मगर जरूर जेल जाएंगे। बंधुगण, इस पूरे विषय को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे सिद्धरमैया जी। हाई कोर्ट में करारा तमाचा मिला उनको और उसके पश्चात फिर भी देखिए कि सिद्धरमैया जी ने अभी तक इस्तीफा तो दूर, उसकी पेशकश तो दूर, यहां राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल तो आपने जेपीसी की बात सुनी ही होगी। हंगामा कटा पड़ा था वहां जेपीसी में। और हंगामे के पीछे क्या मतलब मैंने पूछा, मैं भी वहां पर, हमारी भी एक मीटिंग चल रही थी वहां पर, केमिकल फर्टिलाइजर वाले स्टैंडिंग कमेटी की भी मीटिंग चल रही थी और यहां बहुत तेज तेज आवाज हो रही थी। तो हमने पूछा क्या हो रहा है, तो कोई जाके पूछ के आया। फिर जो कहानी बताई, मैं तो चाहता हूं वो कहानी आपको बताई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी कल पकड़ी गई चोरी। वो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। आप सोचिए जरा, वो पूरे हिंदुस्तान में कोई जमीन हड़प रहा है और यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हीं की जमीन हड़प ली है। और उसकी पेशकश करने के लिए और उसका सबूत रखने के लिए जो उसके अधीक्षक हैं, जो उसके पूरे काम को देखते हैं, उनको कल बुलाया गया था। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक ट्रस्ट है, पारिवारिक ट्रस्ट है। इन सब लोगों के एक ट्रस्ट होते हैं, ये बिना दीज आर ट्रस्टलेस पीपल बट दे हैव अ ट्रस्ट ऑफ द फैमिली। अपने परिवार का एक ट्रस्ट होता है उनका, क्योंकि इन पे ट्रस्ट कभी नहीं करना है, ये जरूर हड़पेंगे मगर उनका एक ट्रस्ट होता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। वहां एक राजीव गांधी ट्रस्ट है, वो भी हड़पता है, तो इनका भी एक ट्रस्ट है, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। तो ये सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट जो है, इसने बेंगलुरु के पास एक हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क है, उस पार्क के पास उन्होंने 5 एकड़ जमीन लिया है, 5 एकड़ जमीन, और उसकी जो कुल। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।